Hello, students. How are you? I hope you all are absolutely fine and healthy. Today, I'm going to explain a very important topic of language section, that is determiners. Okay, I think you all are aware of this word, of this topic, determiners. So, let's see what is a determiner. Okay. Here you can see the definition of a determiner. Determiners are words that modify nouns, right? Determiners वो words होते हैं जो किसी noun को modify करें, उसे determine करें. In other words, दूसरे शब्दों में, determiners are words that can be used before nouns to determine or to modify their meaning. Determiners वो words होते हैं जो किसी noun से पहले use होते हैं और उसकी मीनिंग को मॉडिफाई करें, उसकी मीनिंग को डिटरमाइन करें, डेफिनेट करें. डिटरमाइनर्स फंक्शन लाइक एडजेक्टिव्स, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट. तो डिटरमाइनर्स जो होते हैं दे आर काइंड ऑफ एडजेक्टिव, हाँ, वे एडजेक्टिव की तरह फंक्शंस करते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड अ फिक्सिंग वर्ड्स, राइट. हम उन्हें फिक्सिंग वर्ड भी कहते हैं, राइट. सी देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिटरमाइनर्स. यू कैन सी हियर. Determiners may determine or fix a place, person or thing. किसी place, person और thing को वो fix करता है. Like a determiner may identify two or more person or things. Determiners may precede numeral or objects. हम किसी numeral object से पहले भी इसका use कर सकते हैं. A determiner may indicate a quantity or amount. Determiners are also used as a quantifiers. किसी चीज़ को, किसी नाउन की क्वांटिटी को बताने के लिए, उसके अमाउंट को उसकी मेजरमेंट को बताने के लिए भी हम डिटरमाइनर्स का यूज़ करते हैं. ओके. क्लासिफिकेशन ऑफ डिटरमाइनर्स, राइट. Determiners can be classified into, here are some categories, right, of determiners. The first one is articles. Articles consist of a and the. A and the, right, fall into this category, and a and the are known as articles. Demonstrative adjectives, this, that, and these and those, they are demonstrative adjectives. Quantifier. अच्छा, quantifiers क्या होता है बेटा? A quantifier is a word or phrase which is used before a noun to indicate the amount or quantity. किसी noun से पहले जो word इस तरह से use हो जो उसकी quantity को या उसके amount को बताए, उसे quantifiers कहते हैं, right. And types of quantifiers are as follows. Definite 1, 2, 100. Indefinite some, many, much, enough, few, a few, all, little, a little. Like these are the quantifiers. And don't worry, you all will study all these things properly and separately, है ना. ए एंड द या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हो गए, इन सभी को हम प्रॉपर स्टडी करेंगे, राइट. अभी आप यहाँ पे ऐसे और देख लीजिए. डिस्ट्रीब्यूटिव, each, every, all, either, neither. Difference, another, other, right. Comparative, more, less, fewer. Possessives, right, my, your, his, her, its, are, their, mine, hers, yours, ours, theirs, etc. So these are the categories of determiners, and this is the classification of determiners. See, very important. Determiners and kinds of noun with which they are used. कौन से determiners किस तरह के, किस kind के noun से पहले यूज़ किए जाते हैं? A, an, each, everyone, another, and either are used with singular countable noun. इन सब का यूज़, A का यूज़, an का यूज़, each, everyone, another और neither, either,
इन सब का यूज़ हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं. दिस एंड दैट आर यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स. ओके, है ना, वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स. दिस और दैट का यूज़ हम अनकाउंटेबल नाउन्स और सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स दोनों के साथ हम कर सकते हैं. दीज एंड दोज आर यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स. ठीक है, दीज और दोज का यूज़ हम लोग अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ कर सकते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी इनका यूज़ करते हैं. राइट. अ लिटिल, अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, मच आर यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स. जैसे अ लिटिल हो गया, अ लॉट ऑफ हो गया, ये सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के साथ किए जा सकते हैं इनका यूज़. जैसे काउंटेबल और अनकाउंटेबल, आई थिंक यू ऑल आर अवेयर ऑफ. काउंटेबल नाउन्स आर दोज विच कैन बी काउंटेड, जिन नाउन्स की गिनती की जा सकती है, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, उन्हें काउंटेबल नाउन्स कहते हैं. एंड सच नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड आर नोन एज अनकाउंटेबल नाउन. और जिन नाउन्स की गिनती हम नहीं कर सकते हैं उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं. जैसे पेन हो गया, टॉय हो गया, मैन, बॉय, ये सब काउंटेबल नाउन्स में आते हैं. राइट. एंड अनकाउंटेबल नाउन में क्या आते हैं, जैसे विंड हो गया, वाटर, जितने भी मटेरियल नाउन्स होते हैं, है ना, लिक्विड्स होती हैं, है ना, उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं. वाटर, गोल्ड. अब क्या है, देयर इज़ अ लिटिल वाटर इन द ग्लास. हाँ, तो देयर इज़ अ लिटिल वाटर इन द ग्लास, यानी कि उस ग्लास में वाटर की क्वांटिटी कितनी है, अ लिटिल में थोड़ा सा कम. तो यहाँ पे अ लिटिल का यूज़ हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं. ठीक है ना. इन द सेम वे जस्ट गो थ्रू दिस. अभी तक तो हम लोगों ने सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है डिटरमाइनर्स का. ठीक है. वंस आई विश कि एक बार और आप कंप्लीटली डिटरमाइनर्स को पढ़ें. देन आज हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे आर्टिकल्स पे. ओके, सो टुडे आई विल एक्सप्लेन द आर्टिकल्स, their use. Right, articles and their use, a and the. There are three articles, a and the. अब उनका यूज़ हम लोग सेपरेटली कैसे करेंगे. ठीक है. आई हैव ऑल्सो रिटन ओवर हियर. सी यूज़ ऑफ ए एंड द. ठीक है ना. पहले हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ अ. A is used before a singular countable noun beginning with a consonant sound. Right. A का यूज़ हम उस सिंगुलर नाउन से पहले करेंगे जिसकी शुरुआत एक कॉन्सोनेंट साउंड से होती है. अब कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है बेटा. देयर आर, यू ऑल आर अवेयर ऑफ द लेटर्स. देयर आर 26 letters in English. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. So from all these 26 letters, 5 are vowels. A, E, I, O, U. ये 5 vowels होती हैं and the rest 21 letters are consonant. ठीक है ना. तो जो consonants होते हैं मीन्स B, C, D, राइट. तो जिस शब्द की शुरुआत, जिस वर्ड की शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो या कॉन्सोनेंट साउंड से हो, उसके पहले हम अ का यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है. अब हेयर बॉय इज़ अ नाउन. अच्छा, यहाँ पे बॉय है, बॉयज़ नहीं है, तो यानी यह क्या हुआ, सिंगुलर हुआ. सिंगुलर, और इसे हम देखो 3 चीज़ें होती हैं. पहली चीज़ कि नाउन सिंगुलर होना चाहिए, बॉय इज सिंगुलर नाउन. दूसरी चीज़ कि वह काउंटेबल होना चाहिए, बॉय हम लड़कों को काउंट कर सकते हैं, है ना. एंड थर्ड वन कि इसकी जो बिगिनिंग है वह बी से है, और बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है. इस वजह से इस नाउन से पहले हम किसका यूज़ करेंगे, अ का यूज़ करेंगे. शी इज़ अ डॉक्टर. अगेन, शी इज़ अ टीचर. टी इज़ अ कॉन्सोनेंट एंड गिव्स द कॉन्सोनेंट साउंड. आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ. डी इज़ ऑल्सो कॉन्सोनेंट एंड गिव्स अ कॉन्सोनेंट साउंड. ओके. in this sequence you can see a horse, a man, a dog. Okay. ही इज़ अ वन आइड बॉय. बेटा कभी कभी ये होता है कि कोई नाउन वॉवल से शुरू होता है, बट इन स्पाइट ऑफ बिगिनिंग विद वॉवल साउंड इट गिव्स द कॉन्सोनेंट साउंड वन. तो ओ एन ई, वन में ओ वॉवल है, बट यहाँ पे वॉवल की साउंड नहीं आ रही है. वॉवल की साउंड क्या होती है, ए, ई, आई, ओ, यू. राइट. अ, आ, ई, ऊ, ऊ. बट यहाँ पे ओ जो है, यहाँ पे व
यानी हिंदी का जो व होता है वो व्यंजन होता है, कॉन्सोनेंट साउंड होता है, तो वन से पहले हम अ का यूज़ करेंगे। उसी तरह यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में यू वॉवेल है, बट it doesn't give the sound of vowel, it gives the sound of consonant. So before university we will use a. Use of an is used before a singular countable noun beginning with vowel sound. an का यूज़ हम तब करते हैं, उस नाउन से पहले करेंगे जिसकी बिगनिंग वॉवेल या वॉवेल साउंड से हो। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ एन एलिफेंट, हियर the word elephant starts with e, and what is e? E falls into category of vowel. okay, so ये elephant countable भी है, elephant singular है, और इस elephant में e vowel है और vowel के sound भी दे रहा है। इस वजह से इससे पहले हम किसका यूज़ करेंगे? an का यूज़ करेंगे। he is an honest officer, right? she is an honest officer। यहाँ पे देखो h वो consonant है, लेकिन यहाँ पे h silent है। इसकी जो इस वर्ड की जो साउंड है वो वॉवेल साउंड से हो रही है, ऑनेस्ट, राइट? सो ऑनेस्ट से पहले भी हम एन का यूज़ करेंगे। आई एम एन इंजीनियर, इंजीनियर, द वर्ड इंजीनियर बिगिंस विद ई एंड ई गिव्स द वॉवेल साउंड। आई शैल कम बैक आफ्टर एन आर, है ना बेटा? आर, अब यहाँ पे देखो आर में एच है, बट यहाँ पे इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो आर होता है, हाँ, ओ से स्टार्ट होता है इसका प्रोनाउंसिएशन। इस वजह से इसके पहले भी हम एन का यूज़ करते हैं, राइट? एन ऑरेंज, एन एग, एन एप्पल, सो ऑन। सो दीज आर द रूल्स ऑफ यूजिंग ए एंड एन। नाउ सी द यूज़ ऑफ, अच्छा, ए एंड एन आर नोन एज indefinite articles, ठीक है ना? while the is known as definite articles. See, use of definite articles, the is used before singular countable noun। देखो यहाँ जो आर्टिकल द है उसका भी यूज़ हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के से पहले करते हैं, राइट? प्लूरल काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन से पहले कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट कि अनकाउंटेबल नाउन्स जो जिनको काउंट नहीं किया जा सकता उनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता। जैसे कि वाटर है, तो वाटर को काउंट नहीं किया जा सकता, वाटर को हम वाटर्स नहीं लिखते हैं। एज वी कैन नॉट से सुगर्स, देखो इसमें सुगर का एग्जांपल दिया हुआ है, राइट? सो द इज यूज्ड इन द फॉलोइंग मैनर वाइल टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन। जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग की बात करते हैं तो हम द का यूज़ करते हैं। जैसे द बुक यू वांट इज़ नॉट अवेलेबल, मतलब कि जो किताब, यहाँ पे उस बुक को डेफिनेट किया गया है, पर्टिकुलरली किसी बुक की बात की जा रही है कि द बुक यू वांट इज़ नॉट अवेलेबल, मतलब जिस बुक को आप लेना चाहते हैं वह अवेलेबल नहीं है ना? अगर सेंटेंस ऐसे होता कि बुक्स आर वेरी प्रीशियस, राइट, और बुक्स और ट्रेजर ऑफ नॉलेज, तो वहाँ पे हम बुक्स से पहले हम द का यूज़ नहीं करें, क्योंकि हम बुक एज अ कॉमन, एज अ होल यूज़ कर रहे हैं। बट यहाँ पे किसी पर्टिकुलर बुक की बात की जा रही है, तो जैसे एक और एग्जांपल है, द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर, यानी कि जो लड़का वहाँ खड़ा है, इज़ माई ब्रदर, वो मेरा ब्रदर है। तो एक किसी खास पर्टिकुलर बॉय की बात की जा रही है। व्हेन अ सिंगुलर नाउन एक्सप्रेसेस द होल क्लास, लाइक द डॉग इज़ अ हार्मफुल एनिमल, लाइक जब किसी सिंगुलर नाउन की यूज़ एज उसके पूरे होल क्लास को रिफ़र करती है, तो वहाँ पे हम उसके पहले द का यूज़ कर सकते हैं। बिफोर सम प्रॉपर नाउन्स, कुछ प्रॉपर नाउन्स के पहले भी हम द का यूज़ कर सकते हैं। जैसे बिफोर द नेम ऑफ ओशन, देखो यू कैन सी द पैसिफिक ओशन, द अरेबियन सी। अब यहाँ पे पैसिफिक ओशन एक ओशन है, तो उससे पहले हम द का यूज़ कर सकते हैं। रिवर्स के नाम से पहले द यमुना, द थेम्स, द गंगा, कैनाल्स, द स्वेज कैनाल, डिज़र्ट्स, द थार डिज़र्ट, द सहारा डिज़र्ट, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है? इन सबसे पहले हम द का यूज़ करते हैं। फोर्थ, बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस मैथोलॉजिकल बुक, जितनी धार्मिक बुक्स होती हैं उनके पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल द वेदास, द पुराणास, एक्सेट्रा। फिफ्थ, बिफोर द नेम्स ऑफ थिंग्स विच आर यूनिक और वन ऑफ देयर काइंड, ऐसी चीज़ें धरती पे जो यूनिक हैं और सिर्फ अपनी ही एक अलग ही काइंड की हैं, जैसे द सन, द मून, जितने भी हेवनली बॉडीज़ होती हैं उनसे बिफोर द नेम्स ऑफ हेवनली बॉडीज़ वी ऑल्सो यूज़ द। बिफोर अ प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज़ क्वालिफाइड बाय एन सब,
subject, like the great Caesar, the king of Rome. जब किसी प्रॉपर नाउन को हम डेफिनेट करते हैं तो वहाँ पे हम उससे पहले भी द ग्रेट मराठा इस तरह से यूज़ कर सकते हैं. विथ सुपरलेटिव, जितनी भी सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं उन सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी द का यूज़ किया जा सकता है. जैसे दिस इज़ द वर्स्ट परफॉर्मेंस आई हैव एवर सीन. Pacific Ocean is the largest ocean, right? He is the tallest boy. The tallest superlative degree और tallest से पहले द का यूज़ कर सकते हैं. विद ऑर्डिनल्स, जैसे ही जैसे द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, है ना, जो ऑर्डिनल्स नंबर्स होते हैं उनसे पहले भी हम द का यूज़ करते हैं. बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, राइट, बिफोर एन एडवर्ब विद कंपैरेटिव. द मोर मनी वी हैव द मोर वी वर्क. ठीक है ना. So these are the categories of using and rules of using the. I will also give you some exercise based on a, an or the, like fill in the blanks with a, an or the in the newspaper report. बेटा ये जो fill in the blanks हैं ये मैं अभी आपको दूंगा, इसी वीडियो में नोट्स में दूंगा. तो यहाँ पे you should just see whether a is used और an is used और the is used. तो a and the में से कोई भी जो भी प्रॉपर वर्ड है उसका यूज़ आप इसमें करेंगे, राइट. So today I taught articles a and the, okay, and tomorrow here the first category is done. Tomorrow I will explain demonstrative adjective and quantifiers, okay.